Hello, I am Dr. Anup Kumar Sharma, Department of Chemistry, SPNKS Government PG College, Dausa. Today we will discuss paper CH504, that is Organic Synthesis First of Group Second, MSc Final. We will discuss Unit Second, that is Oxidation of this paper. In previous classes we have well known with the definition of oxidation. The main and the basic definition was the incorporation of oxygen or the removal of the hydrogen from a molecule is called oxidation. So whatever may be the process, whether the incorporation of oxygen or the removal of hydrogen, the net result is the partial removal of the electron from the molecule. So basically here we are interested not in the definition of this oxidation, we are interested in the oxidation of the various system of molecules which are, and not only the systems or different type of molecule, but also the reagents which are responsible for the oxidation. So first of all we will go through the oxidation of the alkene. Oxidation of alkene simply means the oxidation of the double bond. Double bond is a electron rich thing, so the oxidation of double bond may occur through various reagents. So first of all we will see the oxidation via epoxidation. Epoxidation simply means the formation of a three-membered ring in which one member is oxidation. It's an heterocyclic ring in which one member is heteroatom is oxygen. So the reagent responsible for oxidation is peracid. The peracids are used for the oxidation of the double bond to form an epoxide ring, and this peracid, by losing its oxygen, it converted into the acid. So if some electron releasing alkyl group are present on the double bond, then the oxidation process is increased. That is, the reactivity of this reaction increases. This is simply due to the increase of the electron density on the double bond due to plus I effect of these alkenes. एपॉक्सीडेशन हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो एपॉक्सीडेशन में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है जिसमें हेट्रोएटम ऑक्सीजन होता है. डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड पर एक पाई बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में से एक ऑक्सीजन एटम उसके साथ जुड़ जाता है. एक थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाती है जिसमें एक मेंबर जो हेट्रोएटम है वो ऑक्सीजन जुड़ जाता है. इस रिएक्शन में जो परऑक्सी एसिड है वो सिंपल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है. इस तरह ऑक्सीडेशन हो जाता है. डबल बॉन्ड पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई समूह जुड़ा है, जैसे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है डबल बॉन्ड पे, तो ये रिएक्शन तेजी से होता है. यहाँ हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखाए हैं जिनमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं,
या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से है, दिखाई गई है यहाँ पे। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शंस आर, नंबर 1, इट इज रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिविटी से मतलब है कि ये स्पेसिफिक एक सेलेक्टिव है, उस रीजन को सेलेक्ट करता है जिसमें वहां पे अटैक करता है उस डबल बॉन्ड के ऊपर जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन जो रिंग में डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये स्पेसिफिकली जो परऑक्सी एसिड है वो इस डबल रिंग वाले डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। सो इट इज रीजियो सेलेक्टिव फॉर मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड व्हेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, रीजियो सेलेक्टिव है। नंबर 2 इज इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक simply means cis-2-butene gives only the cis product. cis-butene cis product देगी और trans-butene trans product देगी, so it is stereospecific. Second characteristic of this reaction is stereospecificity. Number 3 is, third characteristic is cyclic alkenes are attacked predominantly from the less hindered side. साइक्लिक जो एल्कीन्स हैं वो उनके ऊपर अगर ये परऑक्सी एसिड अटैक करता है तो हमेशा उस साइड से अटैक करता है जो लेस हिंडर्ड होगी, है ना, जिससे कोई स्टीरियो स्पेसिफिक हिंड्रेंस इसमें ना हो। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स और द डबल बॉन्ड इज द डायोल फॉर्मेशन. First was the epoxidation and second is diol formation. Diol formations, it can occur by 3 types of reagents. So there are 3 methods for the converting alkene into the diols. 3 तरीके से ये convert हो सकता है और 3 reagents के through. Number 1 is osmium tetraoxide. Osmium tetraoxide से जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में किया जाता है, पिरिडीन और एक्वस सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में. सो द pyridine which is complexes the osmium atom in the ester into is often added as a catalyst with aqueous sodium sulfide to give a cis-1,2 diol. So this osmium tetraoxide, it attacks on this double bond of alkene to form a cyclic intermediate which is hydrolyzed to form diol and osmic acid is formed. So the important characteristic of these reactions is it reacts with the most electron rich double bond when the more than 1 double bond are present. जैसे हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है मॉलिक्यूल में तो जो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है उसके ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अटैक करेगा. नंबर 2 इज, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट अटैक्स रिजिड साइक्लिक systems from less hindered side. Again the same characteristic is it will attack from the less hindered side of the molecules. Okay, the reason is simple stereochemistry. Simple stereochemistry है कि जिधर से hindrance कम होगी उधर से ये molecule attack करेगा, okay, to form this diol. The third characteristic is because of its toxicity, osmium tetraoxide is used in catalytic quantities in the presence of tertiary ammonium oxide. Because ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है इसलिए टर्शरी अमीन ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है जिससे ये अमीन में कन्वर्ट हो जाती है और इसका ऑक्सीडेशन के ये डायल फॉर्मेशन में ये यूज होता है. सो due to this toxicity
एक्चुअली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका यूज भी ऑक्सीडेशन में बहुत कम किया जाता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पॉइजनस होने की वजह से द सेकंड ऑप्शन जो है, द सेकंड तरीका है ऑक्सीडेशन का, तो द पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट भी the same the modus operandi, the type, the reaction formation, the intermediate formation in the reaction is very similar to that of osmium tetraoxide. So the same type of intermediate is formed, and by the hydrolysis of this diol is formed. It is normally used in an aqueous solution in which the organic compound is dissolved or suspended, because organic compound will not dissolve in aqueous solution, so either suspension of it is made, or a co-solvent is also added with this. A mixture of two solvent is used. Organic compound एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए उसको उसका सस्पेंशन बनाने के लिए, उसको सॉल्वेंट में घोलने के लिए एक को सॉल्वेंट भी यूज होता है। प्रैक्टिकली एक सिस्टम ऑफ सॉल्वेंट डेवलप किया जाता है दो सॉल्वेंट्स को मिला के, और जो को सॉल्वेंट है वो ज़्यादातर टर्सरी ब्यूटेनॉल और एस्टिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। In further oxidation, it is necessary to work in alkaline condition. Here, if you want to proceed this oxidation further, डायोल से आगे अगर अपन को एसिड बनाना है, आगे एसिड में ऑक्सीडेशन करना है, तो हमें ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में करनी होगी। सो एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करने से ये डायोल फर्दर ऑक्सीडाइज होके फर्दर एल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमैंगनेट इज लेस सेलेक्टिव देन osmium tetroxide, but it is less hazardous, as we have discussed earlier, because osmium tetroxide is very much poisonous, so potassium permanganate is used for this. Permanganate ion वैसे तो osmium tetroxide से less selective है, लेकिन यूजुअली हैंडल करने में कम हैजार्डस होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। The third method of oxidation is the oxidation of double bond is the oxidation with iodine silver acetate. Wet simply means iodine silver acetate will react either wet or in dry form. So first of all we will discuss the wet form. This method also yield cis diol. इसमें भी cis diol बनता है। The alkene is treated with the iodine in aqueous acetic acid in the presence of silver acetate. Alkene जो है वो आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं अपन। The solvent जो होता है इसमें वो एसिटिक एसिड होता है। तो ये एसीटेट आयन जो है सिल्वर एसीटेट से जो एसीटेट आयन मिलता है ये अटैक करता है इसमें। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि एसीटेट आयन बैक साइड अटैक करता है, सिल्वर आयन की वजह से एक 3 मेंबर्ड रिंग बनता है और एसीटेट आयन इसके पीछे से अटैक करता है। अगले स्टेप में ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन यहाँ पे हमने थोड़ा खोल के लिख दिया है। इसमें एसीटेट आयन का इस ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन करता है और रिंग फॉर्मेशन करके एक इंटरमीडिएट हमें ये बन जाता है। इसमें सिल्वर जो है ये आयोडीन के साथ इसमें से सिल्वर आयोडाइड की फॉर्म में निकल जाता है और हमें ये इंटरमीडिएट बनता है। इसमें से H+ आयन रिमूव हो जाता है। H+ आयन रिमूव, पहले तो वाटर जुड़ जाता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है इस कार्बन के ऊपर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन है ना ये। इस कार्बोनियम आयन के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, उसमें से एक H+ आयन निकल जाने से OH एटम, OH ग्रुप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फर्दर अगेन इसके ऊपर यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट होता है और रिपीट होने के बाद यहाँ से ये हाइड्राइड आयन निकलता है
और इस पे H+ आयन निकलता है, हाइड्राडाइन नहीं, H+ आयन निकलता है यहाँ से, और हमें ये एक OH यहाँ पे डायोल बन रहा है, तो एक OH यहाँ पे जुड़ जाता है और एक इधर पे ये एसीटेट आयन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हाइड्रोलिसिस करने पर ये एसीटेट आयन इसमें से रिमूव हो जाता है और हमें एक डायोल यहाँ पे मिल जाता है। इन रिजिड साइक्लिक एल्कीन्स द अप्रोच ऑफ द आयोडीन फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड लीड्स टू द लेस स्टेबल सिस डायोल। लेस जो हिंडर्ड साइकिल हैं उसमें हिंड्रेंस की वजह से जो एसीटेट आयन, अब हमने पिछले बार मैकेनिज्म में देखा है कि आयोडीन जिधर से जुड़ता है, एसीटेट आयन उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। तो एसीटेट आयन अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने की वजह से जो OH ग्रुप है वो उसी साइड में जुड़ेगा जिधर एसीटेट आयन जुड़ रहा है। तो इस वजह से इसमें जो एक OH ग्रुप है वो उसी साइड में जुड़ता है जिधर पहले से ही हिंड्रेंस है। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है हिंड्रेंस की वजह से। सो लेस स्टेबल सिस डायोल इज फॉर्म। तो जिन सिस्टम्स में जो रिजिड सिस्टम है, उन रिजिड सिस्टम्स में एल्कीन, चूंकि आयोडीन उसी साइड से अप्रोच करती है जिधर से हिंड्रेंस कम होती है, मतलब मिथाइल इस मॉलिक्यूल में जिधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, आयोडीन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी और एसीटेट आयन आयोडीन के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, जिससे OH ग्रुप उसी एसीटेट की जगह यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ता है। इस वजह से इसमें ये OH ग्रुप, एक OH ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में, वो एक साइड में हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो इस जो वेट वाली मेथड है, इसमें ये सिस प्रोडक्ट बनता है जो कि लेस स्टेबल है। द फोर्थ टाइप इज द आयोडीन सिल्वर एसीटेट ड्राई। ये ड्राई रिएक्शन होता है। इसमें द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर। वो जो जिसमें वाटर की प्रेजेंस में होता है उसको वेट बोलते थे, और इसमें वाटर नहीं है, इस वजह से इस रिएक्शन को ड्राई बोलते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये होता है, और इसमें जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इसमें उसमें वेट वाले में एसीटेट आयन के अटैक करने की वजह से सिस प्रोडक्ट बनता था, और इसमें ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर लीड टू a trans 1,2 diol acetate from which the trans diol is obtained by the hydrolysis। यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन जुड़े हैं, एसीटेट जुड़े हैं, जो वो दो अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस साइड में जुड़े हैं, इनके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे अपन को डायोल मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो जो हमें मिला वो ट्रांस प्रोडक्ट है विच इज मोर स्टेबल। ये बेसिकली ये प्रीवोस्ट रिएक्शन है, ये प्रीवोस्ट रिएक्शन के उसमें हमें मिल सकता है। आज हमने एल्कीन के ऑक्सीडेशन के दो मेथड पढ़े। पहले में एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन और दूसरा डायोल फॉर्मेशन। डायोल फॉर्मेशन के हमने 4 तरीके पढ़े। पहले तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, फिर पोटेशियम परमैंगनेट से, और आयोडीन सिल्वर एसीटेट से। आयोडीन सिल्वर एसीटेट 2 तरीके का था, वेट रिएक्शन और ड्राई रिएक्शन। वेट रिएक्शन एक्वस मीडियम में होता है वाटर की प्रेजेंस में, जिसमें सिस प्रोडक्ट मिलता है, और आयोडीन सिल्वर जो ड्राई प्रोसेस है उसमें हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है विच इज मोर स्टेबल। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्लीवेज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट किया था हमने किसी डायोल में या एपॉक्साइड फॉर्म में। अगले लेक्चर में हम क्लीवेज ऑफ डायोल पढ़ेंगे। थैंक यू।